Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English Grammar. Chapter 1. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स निकालिए इंग्लिश ग्रामर की एंड टर्न टू पेज नंबर 5. Yeah, okay. So, on page number 5, we have our first chapter of grammar, that is compound words. What it is? Compound words. Now let us learn what are compound words. चलिए पढ़ते हैं कि compound words क्या होते हैं. Compound word is formed by joining two words together. Full stop. So the definition is that compound word is formed by joining two words together. यानी यहाँ कहा गया है कि compound word वो शब्द है जो बनता है दो शब्दों के जुड़ने से. दो शब्द जब एक साथ आते हैं और कोई वर्ड बनाते हैं तो वो कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप देखिए. आई प्लस ब्रो इक्वल्स टू आई ब्रो. देखिए आई प्लस ब्रो क्या होता है? आई ब्रो. नेक्स्ट, आई प्लस लीड, आई लीड. देखिए आई प्लस लीड, आई लीड. एक वर्ड बन गया दो वर्ड्स को मिलाकर. सन प्लस फ्लावर. देखिए यहाँ पर भी दो अलग अलग शब्द हैं, सन और फ्लावर, बट ये दोनों मिलकर एक शब्द बन जाते हैं, सनफ्लावर. यस, ओके. फ्लावर प्लस पॉट इक्वल्स टू फ्लावर पॉट. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी दो वर्ड्स जिनका खुद का अपना एक मीनिंग है वो एक होकर एक नया वर्ड बनाते हैं, दैट्स फ्लावर पॉट. सो in this way, the new word formed by joining two words is called a compound word. तो यहाँ कहा गया है कि इस तरह से the new word, जो नया शब्द बनता है, formed by joining, जोड़ने से two words, दो शब्दों को, is called, कहलाता है a compound word. Some important compound words of your textbook are as following. तो यहाँ कहा गया है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स जो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं वो नीचे दिए गए हैं. नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव सम कंपाउंड वर्ड्स, सो लेट अस रीड देम वन बाय वन. चलिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, सो हम इन्हें एक एक कर पढ़ते हैं. सम डे, ओके, सम प्लस डे इक्वल्स टू सम डे. हाउस होल्ड, हाउस प्लस होल्ड इक्वल्स टू हाउस होल्ड. Something, some plus thing equals to something. Magic plus lamp equals to magic lamp. Yeah. Mother plus land equals to motherland. Firecrackers, fire plus crackers, firecrackers. Firefly, fire plus fly, firefly. Unconscious, UNCON, conscious. Un plus conscious, unconscious. Show plus room, showroom. Our plus selves, ourselves. Note plus book, notebook. No plus thing, nothing. Un plus just, unjust. So students, in the first table we saw, हमने देखा कि कैसे दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है. ओके, वी हैव सीन दैट हाउ two words can be joined and a new word can be
formed. So let us go to the next table. Prayer plus assembly, prayer assembly. Class plus room equals to classroom. Fire plus works equals to fireworks. Under plus stood equals to understood. Over plus come equals to overcome. Un plus tidy equals to untidy. Un plus happy equals to unhappy. Next, news plus paper equals to newspaper. Care plus fully equals to carefully. Hand plus made equals to handmade. What plus ever equals to whatever. Teen plus age equals to teenage. Okay, let us move to the next table. Cob plus web equals to cobweb. Every plus day equals to everyday. Flower plus bed equals to flower bed. Chatter plus box equals to chatterbox. Dust plus bin equals to dustbin. Sleep plus less equals to sleepless. Un plus just equals to unjust. Okay, we have done unjust. Just here देखिए unjust हम एक बार कर चुके हैं. So it's repeating. Gold plus smith equals to goldsmith. Im plus patient equals to impatient. Home plus work equals to homework. Play plus ground equals to playground. Water plus bodies equals to water bodies. Auto plus rickshaw equals to auto rickshaw. Done? Okay, so let us move to page number 6. चलिए page number 6 की तरफ पढ़ते हैं. Now here we have exercise 1 to be started. Students, यहाँ पर हमें exercise 1 दे रखी है जो हमें करनी है. And what we have to do in that? और हमें उसमें क्या करना है? Let us see. चलिए देखते हैं. Match A with B to form meaningful compound words. So students, यहाँ आपसे कहा गया है कि मैच A यानी जो A कॉलम है उसे आपको B कॉलम से मैच करना है. ओके, टू फॉर्म, ताकि वो बने अ मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड, एक ऐसा कंपाउंड वर्ड जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई मीनिंग हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज ओवर. जो पहला वर्ड है हमारा वो है ओवर. OVER, ओवर. सो विथ विच वर्ड कैन ओवर बी जॉइंट? किस वर्ड के साथ हम ओवर को जॉइंट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं. ओवर होल, नो. ओवर बॉक्स, नो. ओवर बेड, नो. ओवरकम, यस. सो स्टूडेंट्स, आवर वर्ड विल बी ओवरकम. हमारा वर्ड क्या होगा? ओवरकम. सो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है ओवर, उसको आप बी के फिफ्थ वर्ड कम के साथ मैच कर दीजिए. एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए स्टूडेंट्स अपने स्केल की मदद से और पेंसिल से. एक तिरछी लाइन बनाइए ओवर और कम को जोड़ती हुई. डन. नेक्स्ट, डस्ट. DUST, डस्ट. नाउ विथ विच वर्ड वी कैन जॉइन डस्ट? किस वर्ड के साथ हम डस्ट को जॉइन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं. डस्ट होल्ड, नो. डस्ट बॉक्स, नो. डस्ट रे, नो. डस्ट बेड, नो. डस्ट कम, नो. डस्ट पेपर, नो. डस्ट रूम, नो. डस्टबिन, yes. So students, just put a number over here. आप जो डस्ट यहाँ पर बिन है उसके आगे नंबर 2 लिख दीजिए. ओके, यहाँ पर नंबर 2 लिख दीजिए, बिन के आगे नंबर 2 लिख दीजिए. और अगर आप चाहें तो आप इसे मैच भी कर सकते हैं. यू कैन मेक अ लाइन दैट विल जॉइन बिन. आप चाहें तो इसे
मैच कीजिए, एक लाइन बनाइए डस्ट से लेकर बिन तक। ओके, नाउ थर्ड वन इज फायर। फायर वर्ड किस वर्ड के साथ मैच करेगा? लेट अस सी। फायर होल्ड, नो। फायर बॉक्स, नो। फायर रे, नो। फायर बेड, नो। फायर कम, नो। फायर पेपर, नो। फायर रूम, नो। फायर बिन, नो। फायर लैंड, नो। फायर क्रैकर्स, yes. So students, firecrackers we will make a word. So firecracker हमारा एक कंपाउंड वर्ड बनेगा. So आप चाहें तो क्रैकर्स के पास, यहाँ जो क्रैकर्स लिखा हुआ है उसके पास नंबर 3 लिख दीजिए. नंबर 3, बिकॉज इतना मैच करना पॉसिबल नहीं है. वी कैन मैच इन दिस बॉक्स. हम चाहे तो इस बॉक्स में मैच कर सकते हैं, बट ये काफ़ी दूर हो जाता है, जैसे हमारे वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. नेक्स्ट इज सन. व्हाट इट इज? सन. SUN, सन. सो विथ विच वर्ड वी कैन जॉइन सन? किस वर्ड के साथ हम जॉइन कर सकते हैं सन को? फर्स्ट वन इज होल्ड. सेकेंड वन इज बॉक्स, नो. सन रे, yes. So we will match the word sun with ray. हम कौन से वर्ड के साथ मैच करेंगे इसे? सन रे. आप सन को रे के साथ मैच कर दीजिए, या चाहें तो आप यहाँ पर रे के पास नंबर 4 लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज मदर. जो हमारा अगला वर्ड है वो है मदर, MOTHER. सो हम किस वर्ड के साथ मदर को ज्वाइन करेंगे? दैट इज लैंड. मदर लैंड. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको लैंड दिख रहा है, उसके आगे आप नंबर 5 लिख दीजिए. यहाँ जो स्पेस खाली है लैंड के बाद, यहाँ आप नंबर 5 लिख दीजिए, मदर लैंड. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड इज हाउस. हाउस. सो विथ विच वर्ड वी विल ज्वाइन द वर्ड हाउस? किस वर्ड के साथ हम ज्वाइन करेंगे हाउस को? सो वी हैव हाउस होल्ड. स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, ऑप्शन बी में पहला वर्ड है कॉलम बी में होल्ड. सो हम हाउस को होल्ड के साथ मैच करेंगे. पुट अ स्ट्रेट लाइन. आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए जो मैच कर रही हो हाउस को होल्ड के साथ. डन. ओके, नाउ सेवेंथ इज चैटर. सो विथ विच वर्ड वी विल ज्वाइन द वर्ड चैटर? किस वर्ड के साथ हम चैटर को ज्वाइन करेंगे? पेपर, नो. रूम, नो. बिन, नो. लैंड, नो. क्रैकर्स, नो. होल्ड, नो. बॉक्स, yes. Chatterbox. Students, if you remember, in the chapter number, in the chapter that the tortoise, okay, with whom I should fly, or was it something like that? The tortoise and the cranes, when he talked too much. Where he talked too much? The tortoise talked too much. आप स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्रेन्स और टॉर्टॉइस का, जिसमें वो टॉर्टॉइस बहुत बात करता था और उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था, चैटर बॉक्स. ओके, सो चैटर बॉक्स मीन्स बातोनी. सो वी विल मैच बोथ दीज वर्ड्स, चैटर एंड बॉक्स. हम इन दोनों वर्ड्स को मैच करेंगे, चैटर और बॉक्स को. सो आप चैटर से लेके बॉक्स तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज न्यूज़. अगला वर्ड जो है हमारा वो क्या है? न्यूज़. न्यूज़. सो हम न्यूज़ को किस वर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए, मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड बनाए? सो इट विल बी ज्वाइंड विथ पेपर. न्यूज़ को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? पेपर के साथ. सो इट विल मेक न्यूज़ पेपर. क्या बना देगा वो? न्यूज़ पेपर. हम इसे न्यूज़ पेपर बना देंगे. ओके, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा ये. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन. आपको एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी है यहाँ से पेपर तक. न्यूज़ से लेकर पेपर तक आपको एक लाइन बनानी है जो इन दोनों को मैच करे. ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर. सो हम फ्लावर को किसके साथ मैच करेंगे? Okay, so students, if you remember in the chapter that
रोहित, ओके, द चैप्टर ऑफ रोहित, अ बॉय हु यूज टू डू नथिंग, यानी रोहित वो लड़का था जो कुछ नहीं करता था। आपको याद है क्या वो चैप्टर? यस। सो उसमें एक वर्ड आता है फ्लावर बेड। द पिकॉक वॉज डांसिंग नियर द फ्लावर बेड। उसमें हमने देखा था कि वो मोर फ्लावर बेड के पास नाच रहा होता है। सो यहाँ पर भी वही शब्द है, देखिए फ्लावर बेड, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, दैट इज कंपाउंड वर्ड। वो एक कंपाउंड वर्ड हो गया। तो फ्लावर बेड के साथ मैच करेगा, किसके साथ मैच करेगा? बेड के साथ। सो वी विल मैच बोथ दिस वर्ड्स, हम फ्लावर और बेड को मैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप फ्लावर और बेड से एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचिए। सो दिस विल मैच बोथ ऑफ देम, इससे ये दोनों जुड़ जाएंगे, फ्लावर बेड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज शो। our last word is show। कौन सा है हमारा लास्ट वर्ड? शो। सो विथ विच वर्ड वी विल ज्वाइन? हम शो को किसके साथ ज्वाइन करेंगे? इट विल बी शो रूम। किसके साथ ज्वाइन करेंगे? शो रूम। शो रूम। डन? ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट कंपाउंड वर्ड्स। आज हमने कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ा है, एंड यू हैव टू रिवाइज एंड रिसाइट द कंपाउंड वर्ड्स वी हैव लर्नड टुडे। स्टूडेंट्स, आपको घर पे पढ़ना है, समझना है और दोहराना है उन कंपाउंड वर्ड्स को जो हमने आज लेक्चर में पढ़े हैं। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।